गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ॐ श्रीवक्रतुण्डाय नमः। We have all gathered here to remember Shri Bal Swarup Ji, and people usually meet together on these occasions to express their grief. But when we are called to say a few words about it, we talk it from a celebration point of view, not from grief point of view. Because death is not or passing away is not a bad event in life. It is guaranteed. Every one of us will go. Question is, how do we go? We go miserably, we go happily, we go with jealousy, with anger, with resentment, with dislike, or do we leave remembering the divine? Just now, our Dr. Ji told me that Bal Swarup Ji, when he was at his home, he told the caretaker just one line, and it's enough to tell what mindset he had. 1 week before he said, "Time has come, I am leaving." That's what you told me just now. Do you know what is going to happen tomorrow? Are you going to live tomorrow? Or are you not going to be there tomorrow? This is the preparation. If a person prepares, and how do you prepare in life? People read Bhagavad Gita chapter 2, chapter 18, or they read Garud Puran when someone dies. Baki puri zindagi padhte nahi. Oh, the person who has passed away, हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, दोनों दोनों. So the person who has passed away, he does not need our condolences. He does not need the what you call the Bhagavad Gita. He is already one with the divine. Then who needs? Why this in Sanatan Dharma, this whole system of Shraddha is there, so that all the people who are coming together during the श्राद्ध करके प्रवचन भी होना चाहिए. Usually the priests used to do that. Nowadays they don't do it. They only do the ritual and then go away. So it is a reminder for all of us that we are also going to, this body is also going to go away one day. This is what Garud Purana is telling you. And how to prepare for it. How to prepare for it. Many people I have come across personally who know 6 months in advance that this is the date they are going to go. His father-in-law came to know 1 week before. I know people, some great masters, who know many years in advance how they are going to go, what date they are going to go, under what circumstances they are going to go. And therefore, they are prepared for it. They know it is going to happen. Krishna Bhagwan knew that the arrow is going to come and hit his foot,
and that will be the conclusion of his body. Do you know? Are you going to go away by consciously breathe the last breath, or are you going to go away by the disease of some sort or the other, or are we going to go away by an accident without knowing? Some people wrongly wish, I come across so many people, स्वामी जी हमको तो एकदम खटक से मर जाना है, क्यों नहीं, आई डोंट वांट टू एलोंगेट माय मिजरी इन दिस लाइफ. तो कैसे मरना है? स्वामी जी हार्ट अटैक आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम से चले जाएंगे. कोमा में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. नेवर विश समथिंग लाइक दिस. ऐसे कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए. फिर क्या इच्छा करनी चाहिए? भैया प्रिपेयर करो. यू आर ऑफ द नेचर ऑफ डिवाइन. आत्मा जो है ये भगवत रूप की है. भगवान ही हमारे अंदर लाइफ करके, जीवन करके व्याप्त है. तो उनके बारे में चिंतन करो, रादर दैन थिंकिंग अबाउट द अनवांटेड. अभी एक एग्जांपल बताता हूँ. यहीं पे ग्लेन वेवरली में ही एक थे, क्या नाम था उनका, राघवन. एक राघवन थे, साईं बाबा के डिवोटी थे. एंड मैं इंडिया जा रहा था. उसके एक दिन मेरे को पता चला कि वो आईसीयू में है. मैं उनके पास चला गया. एंड ही इज़ लाइंग इन द बेड, फाइनल स्टेज, एंड एनी डे ही कैन पास अवे, लंग कैंसर. And he told the doctors, this is preparation, I am talking about preparation, not talking about death here. He said to the doctors, doctors give me enough medicine to keep me conscious. मेरे को इतना भी मत दो कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ. फिर क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा कि यार तुमको बहुत पेन होएगा, ये तो लंग्स में कैंसर हो गया था. कहता है नहीं, इट डजेंट मैटर, बट यू कीप मी कॉन्शियस, डोंट लेट मी पास इनटू अ कोमा, keep me alive, and I want to chant the name of the Lord. और वो राम 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 करते करते, मैंने उनको आई थिंक 19 नवंबर को मैं मिला था, बहुत साल पहले, और 20 को मैं इंडिया पहुंचा. मेरे को SMS आ गया कि ही इज पास्ड अवे. हाउ डिड ही पास अवे? टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड. कैन यू गारंटी that when that moment comes you will remember the Lord? देखो उसका तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा कि जाते समय हमको भगवान का नाम याद आएगा कि नहीं आएगा? कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा? अभी क्या प्रमाण है? व्हाट इज द प्रूफ राइट नाउ इन योर डेली एक्सपीरियंस दैट व्हेन द फाइनल मोमेंट कम्स यू रिमेंबर द लॉर्ड और नॉट? हाँ, नहीं, पर अहम का अभ्यास ठीक है, पर अब शरीर तो नहीं गया ना. मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में आपने कभी मृत्यु का अनुभव किया? आपके ना होने का अनुभव किया? रोज करते हो, सोते समय करते हो ना. शरीर, आपके मन में से शरीर चला जाता है, आपके रिलेशंस चले जाते हैं, आपकी पोजीशंस चले जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, मन खाली हो जाता है. तो सोते समय आपका आखिरी विचार क्या है? रोज सतर्कता से विद अलर्टनेस कैच कि आपका आखिरी विचार क्या है. विचार बच्चों का है, रिश्तेदारों का है, पैसे का है, बीमारी का है, दर्द का है, अच्छा बिस्तर है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, इसका है. आखिरी विचार क्या है? रोज रात को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना होने की. आप हो वो बात अलग है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज ए जीव, आप अपने आप को भूल जाते हो कंप्लीटली. आपका मन ज़ीरो हो जाता है. सी, तो रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करिए. एंड अगर आप 1 महीना प्रैक्टिस करो, आदत पड़ जाएगी कि भाई मेरा विचार, किस विचार के साथ मैं सोने जाता हूँ. अगर प्रभु का विचार होगा तो मन में प्रभु आएंगे. सुबह आप उठते समय आपको पहला विचार प्रभु का आएगा. अगर आप सोते समय बच्चों का ख्याल करते हुए सोए हैं तो सुबह पहला विचार बच्चों का आएगा. अगर सोते समय आप सोए हैं कि मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, सुबह उठते ही पहला विचार आएगा मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं. उसी तरह से अगर हमने आखिरी विचार हमारा प्रभु का है, और जब हम अगले जीवन में जाएंगे, अपना अगला शरीर मिलेगा, तो किस टाइप का शरीर मिलेगा हमें? ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये रीइंकार्नेशन थ्योरी है, अपने सनातन धर्म में है.
तो ये कोई ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आज आए, मेक मेरी, ईट, एन्जॉय, और फिर किसने देखा है आगे? अपने संस्कार तो ऐसे नहीं हैं। अपने संस्कार हैं कि भाई तुम अपने संस्कार बनाओ, अच्छे संस्कार बनाओ, और उसके बेसिस पे आपको अगली लाइफ मिलेगी, है कि नहीं? ये एवरीवन नोज। अगर मैं आज कल की बात करते हैं, अगर कल मैंने मिर्ची खाई, आज सुबह मुझे उसका इफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। टॉयलेट जाऊंगा तो आई विल बी ऑन फायर। एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे, अगर मैंने अपने संस्कार बनाए हैं, प्रभु के प्रति निष्ठा है, प्रभु के प्रति समर्पण है, प्रभु के प्रति भक्ति है, और उस विचार के साथ मैंने आपको ओतप्रोत कर लिया है, मेरा मन उस प्रभु के नाम से एकदम दिव्याकृत हो गया है, तो जब मृत्यु आएगी उसके बाद अगला जन्म तो है ही। तो कैसा जन्म मिलेगा? जहाँ पे कि आपकी साधना, आपका चिंतन, आपका प्रभु के प्रति प्रेम कायम रहे, ऐसी योनि में आपको जन्म मिलेगा। ये तो पक्की बात है कि मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन ऐसी फैमिली में मिलेगा जहाँ पे कि आप अपना ये चिंतन आगे कंटिन्यू कर सकें, ऐसी जगह मिलेगा। सी, तो ये एक आर्ट है, इट्स अ नैक, पर इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं हो जाता। हम अपने आप बढ़ रहे हैं, अपने आप भूख लग रही है, अपने आप आंखें देख रही है, पीछे से कोई एक बेवकूफ़ आ जाता है, मैं देख रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है। पहले भूख लगती है, उसके बाद मैं बोलता है कि मेरे को भूख लगी है। पहले आप आंखें देख रही हैं, फिर पीछे से मैं आता है, कहता है मैं देख रहा हूँ। हाँ, नींद आती है, उसके बाद मैं बोलता है कि मेरे को नींद आ रही है। मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं बोलता है कि मैं उठ गया। तो सब कुछ इस जीवन में अपने आप हो रहा है। तो ये मैं कहाँ से आ गया? ये मैं आ गया गीले कचरे और सूखे कचरे के साथ आसक्ति करने से। गीला कचरा क्या है? सॉरी, सूखा कचरा क्या है? ऑल द पोजेशंस इन दिस लाइफ आर योर सूखा कचरा। ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। और गीला कचरा क्या है? ऑल द इमोशनल रिलेशनशिप्स एंड एंटेंगल्स दैट यू हैव इन लाइफ, दैट इज गीला कचरा। ये भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। और जिसने इसमें से, इस गीले कचरे और सूखे कचरे में से अपने आप को उभार लिया है, ट्रांसेंड कर लिया है, और प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा बन गई है, उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होता है। देखो, एक कहानी आती है अपने पुराणों में भरत की। भरत जानते हैं, जिसके पीछे हमारे भारत देश का नाम भी पड़ा, भारत। तो ये भरत थे, एक राजा थे। ये कौन थे? ये शकुंतला के बेटे थे। और एंड ही रूल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। एंड फिर उस समय ये प्रथा थी कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो राजा लोग भी राज्य करते थे, राजा लोग राज्य करते थे, लेकिन उनका लक्ष्य जीवन का हमेशा क्लियर था। क्या हमारा जीवन का लक्ष्य क्लियर है? डू वी नो हाउ, व्हाट वी आर, व्हाट वी वांट टू बी, हाउ डू वी वांट टू सी आवरसेल्व्स व्हेन वी आर राइप एंड ओल्ड, मैच्योर्ड? क्या हमारा दिल फैला? इज इट ऑल इंक्लूसिव? क्या उसमें त्याग है? बिकॉज मेच्योरिटी इज नॉट बाय कलेक्शन, मेच्योरिटी इज त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो। Immortality is gained only by giving up, not by possessing. We want to possess possessions, सूखा कचरा. We want to possess relations, गीला कचरा। और इसी में आदमी घूमता रहता है, आदमी औरत भी, मनुष्य घूमता रहता है। ओके, आई शुड से मनुष्य घूमता रहता है और इससे निकल नहीं पाता। एक मौका मिलता है उसको निकलने का, कब? सोते समय। पर उस सोते समय भी वो जागरूक होकर सो नहीं पाता। इसीलिए कहा जाता है, अपने भगवत गीता में कहा है कि योगी वो है जब सब सोते हैं तब वो जागा रहता है, और जब जागे रहते हैं तब वो सोता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? योगी वो है कि जब पूरे मनुष्य इस जगत के प्रति
जागा हुआ है, योगी इस जगत के प्रति सोया हुआ है। और जब मनुष्य सोया हुआ है रात को, तब योगी उस खाली मन के प्रति जागा हुआ है। ये जीवन का लक्ष्य है। इट्स नॉट जस्ट अ पासिंग कमेंट मेड इन भगवद गीता। और ये अगर हमने अपना जीवन निष्कपट तरीके से जिया है, आई एम नॉट यूजिंग टू मच हार्ड वर्ड्स ना, निष्कपट समझ रहे हो, अनकरप्टेड लाइफ, किसी को उंगली नहीं की है, किसी करप्शन नहीं किया है, धार्मिक जीवन जिया है, सबके प्रति प्रेम का भाव है, सबके प्रति एक्सेप्टेंस का भाव है। इस भाव के साथ अगर हमने जिया, और जहाँ हमको जीवन में प्रभु ने हमको रखा है, वहाँ पे जो करना है हम बिना निष्कपट भाव से हम करते जा रहे हैं। अगर हमने ऐसा अपना एटीट्यूड रखा है, तो आपके जीवन में प्रभु की कृपा ज़रूर 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 होगी। ऐसे ही मन में प्रभु के नाम का उद्गार होता है, नॉट अदरवाइज। क्योंकि बाकी समय क्या होता है, वो गीला कचरा और सूखा कचरा भरा हुआ है, तो उसको जगह ही नहीं आने की। पर जहाँ खाली हो गया, you are living in the moment, doing what is required to be done, without expecting anything, without regretting anything, living righteously, कि किसी के साथ बुरा ना हो, ना मैं किसी के साथ बुरा करूं, अगर कोई बुरा करता है तो भूल चूक माफ, ओके, आई विल कीप मूविंग इन माई लाइफ, नॉट टेक रिवेंज। फिर अगले जन्म में अफगानिस्तान में पहुंचोगे, तो एवरी फैमिली इज फाइटिंग विद ईच अदर। वाई? पिछले माई forefathers, they had done, you had killed that one, so I am going to take revenge. ऐसे एटीट्यूड ये हमारे संस्कार नहीं है। सी, सो थिंक प्रॉपरली। एंड व्हाट इज थिंकिंग? सबसे पहले जीवन में इस प्रकार से कर्म करो कि कोई भी फालतू के इम्प्रेशंस मन में, इम्प्रेशंस मतलब मेमोरीज कलेक्ट ना हो। देखो, हमारे नाना जी थे, ही वॉज माई फर्स्ट गुरु, माई मम्स फादर। वी आर हियर फॉर मम्स फादर ओनली, नो? या, ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड, और 86 ईयर्स ओल्ड होते हुए भी रोज वो सिर्फ 3 बार ओम बोलते थे, और 3 बार ओम बोलने से पहले उनकी समाधि लग जाती थी। और वो जब ओल्ड हो गए, एंड वी हैड टू कीप हिम इन द नर्स, क्या बोलते हैं वो, ओल्ड एज होम, नर्सिंग होम में। एंड ज़्यादा नहीं थे, 1-1.5 हफ्ता ही थे, लेकिन बीच में एकदम से बस ब्लैंक, आंखें भी ब्लिंक नहीं हो रही हैं, किसी को बात नहीं कर रहे हैं। पर जान पहचान के लोग उनको मिलने जाते थे, अन्ना कैसे हो, अन्ना कैसे हो, खाना खाया क्या, आपको चलाऊं क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। पर जहाँ आपने शुरू किया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, जहाँ आपने शुरू किया ओम गणानाम त्वा, कोई भी मंत्र बोल लो, बोलना शुरू कर देंगे। 86 years old, completely blank. If you ask any question, no answers, but if you chant any mantra, he will chant with you. तो उन्होंने आके मेरे को बताया उस दिन कि स्वामी जी ऐसे हो रहा है। तो मैं गया उनके पास। अब मैं तो यंग था, अभी ब्रह्मचारी बना था। आश्रम से अभी आया था, मुश्किल से 1 साल हुआ था। 1 साल भी कहाँ, 2 महीने हुए थे। मैं मई में आया और जून में नाना जी चले गए, और मैं देखा अच्छा नाना जी ऐसे कर रहे हैं, एंड द फीलिंग इज़ देयर दैट ही शुड गो द राइट वे। तो जब मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर मैंने भी ट्राई किया, कुछ मंत्र बोले तो उन्होंने भी साथ में चैंट कर दिया। तो उनके राइट कान में मैंने उनको समरी में पूरा जीवन का लक्ष्य वेदांत कि आत्मा ही सब कुछ है, ये सब कुछ बता दिया 10 मिनट में, 12 मिनट में, उनके राइट ईयर में। और जब बता दिया, अभी तक मैं भूला नहीं हूँ किस तरीके से उन्होंने अपना यूँ ब्लैंक देख रहे थे। ही टर्न अराउंड एंड लुक्ड एट मी, इतना प्रेम कि मेरे माँ बाप ने भी इतना नहीं दिया होगा, इतना प्रेम। कहते हैं वही तो मैं कर रहा हूँ, एंड बैक अगेन इनटू दैट जोन। नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे। सी,
This is preparation. 40 years of doing pranayam, yoga, and meditation, and studying the scriptures. 40 years it took to be. Even after dying, when the hospital told us that he's passed away, early in the morning I went to Ganga Jal उनके मुंह खोल के डाला. He is supposed to be gone. But yeah, Adam's apple, we saw it moving, swallowing it. गंगा जल बोल के बोल डाला मैंने, ऐसे नहीं, बिना बोले नहीं डाला. सो दीज आर सम थिंग्स. जैसे कि आपके मैंने शुरुआती ऐसे की कि उनको एक हफ्ते पहले पता चल गया था कि अब टाइम आ गया है. एंड एक्सेप्टिंग. हम डरते हैं जीवन से, हम अपने आप को सिक्योर करते हैं जीवन में. और सिक्योरिटी हम कहाँ से लाते हैं आप बताओ? सूखे कचरे और गीले कचरे से. The more possessions I have, the more relations I can keep together, I feel secure. But the fact of matter is that at the end, nobody is and nothing is going to go with you. It's only you and your mind and your memories. Have we taken a positive step in this living life to change our memories? We cannot change our memories. They are always there. But have we created a new memory which overrides the old memories? Of what? Of the dry garbage and wet garbage. And what is that? That is the Lord's name. That is contentment. That is unconditional love towards one and all. That is maturity. Growing old and having white hair is not maturity. Maturity is, if you want to see maturity, is everyone coming in our life going away with a smile? Are we accepted by the young, the teenage, the youth and the old people alike? That we don't feel uncomfortable in any gathering? That is maturity. That we have a word of wisdom, wise words means we are, जो बड़ों का ज्ञान है वो छोटों को दे देना, और छोटों के साथ हम जाके करें, बेटा तेरा गोल क्या है, कितने साल का है, 8 साल का है, उसको पूछते तेरे को क्या बनना है, अरे उसके साथ कैरम खेलो उसके साथ ऊनो खेलो, उसके साथ मस्ती मारो. दैट इज बीइंग विद दैट चाइल्ड. बट दैट कम्स अगर हम खाली हो जाएं. खाली होना बहुत ज़रूरी है. और रोज़ हम रात को खाली हो रहे हैं प्रभु की इच्छा से, रोज़ रात को सोते समय. बट सोते समय अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें कि जागते हम जागे हैं और मन सो रहा है. अभी क्या हो गया है अपने जीवन में, ये आपके फादर इन लोगों को कैसे पता चला कि अब मेरा समय आ गया है? Whenever we are in extreme joy, whenever we are in extreme pain, when we have come to this conclusion in our daily life कि भाई जी लिया, अभी हो गया, then this dawns, then this information reveals itself कि क्या समय आने वाला है. मैं नहीं बताऊंगा मेरा कब समय है. We know. See? So you prepare. शादी के बाद we prepare how to be a good wife or a good husband, adjusting husband. Then children come, then we again prepare, we adjust, सब कुछ, everything goes haywire, but you find some way of functioning, not with the kids, because by then husband also becomes a kid, तो उसको भी संभालना है, तो चल रहा है सब कुछ. पर you learn. फिर स्कूल शुरू हो जाता है, उस समय भी तुमको बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है. अगेन यू हैव टू स्टडी विद देम ऑल एवरीथिंग. सो लाइफ इज़ अबाउट प्रिपरेशन. बट वी फॉरगेट. हम सोचते हैं कि जब रिटायर हो जाएंगे फिर हम भगवान का नाम लेंगे. हम सोचते हैं जब रिटायर हो जाएंगे, जब घूम लेंगे, बकेट लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ माई लाइफ, तब मैं भगवान का नाम लूँगा, तब मैं ये सब कर लूँगा, तब मैं शांत हो जाऊँगा, जब मैं ये सब कर लूँगा तब मेरी इच्छाएं सारी ख़त्म हो जाएंगी. बट आपके जीवन में आपका डाटा क्या है कि जब आपकी जैसे जैसे बकेट लिस्ट ख़त्म होती जाती है वो नीचे और लंबी होती जाती है. एग्री और नॉट? सो व्हेन डू यू कॉल इट अ फुल स्टॉप? होता ही नहीं, मौका मिस हो जाता है. फिर क्या होगा? आजकल तो बच्चे भी नहीं सुनते.
पति नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, बीवी नहीं सुनती, तो सबने क्या किया हुआ है आजकल? कोई सुनने वाला घर में पाल के रखा है। क्या है वो? अगर बिल्ली पाली है तो शी इज़ द बॉस, अगर कुत्ता पाला है यू आर द बॉस। सो वी हैव स्टार्टेड क्या? फॉलोइंग द डॉग रादर देन फॉलोइंग द गॉड। व्हाई? बिकॉज ही लिसन्स, ही इज कंटिन्यूसली अवेलेबल, ही इज एट योर मर्सी। दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव। बट ये कितना समझदार है, कितना प्यारा है। यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो बाय डूइंग दैट। यू सेव द टाइम, यू चैंट द भगवद गीता। यहाँ पे जैसे दिया है, वन मोमेंट, हाँ, बोलते हैं ये जब डेस्पोंडेंसी आती है, क्राइसिस आता है, जब जीवन में कोई चला जाता है अपने जीवन में से, तो एक दुख होता है कि भाई जिसके साथ, जिसकी वजह से हमारे को शरीर मिला, जिसकी वजह से हमारे को ये जीवन मिला, पर ये गलती है, जीवन हमारे को माँ बाप से नहीं मिलता। माँ बाप से क्या मिलता है? सिर्फ शरीर। फिर जीवन कहाँ से आता है? कब आता है? अब यहाँ पे डॉक्टर काफ़ी होंगे, मैं चैलेंज नहीं करने वाला, पर मैं भागवत के अकॉर्डिंग टू भागवत बता देता हूँ। भागवत बोलती है चौथे या पांचवें महीने में द सोल एंटर्स द वुम्ब, ऐसा उन्होंने बताया है। तो द फैक्ट इज कि दिस शरीर शुड बी यूज्ड टू सर्व द पेरेंट्स, सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन। बट द आत्मा जो तुम हो उसको तुम इंटैक्ट रखो ना। तो उस आत्मा का नेचर क्या है यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट। तो अर्जुन का भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था और उसको समझ नहीं आया कि ये मेरे जीवन, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता निश्चय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दो, मैं कृपण हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे आई हैव जस्ट लॉस्ट द प्लॉट। तो जब सम नियर एंड डियर लीव्स अस, वी लूज द प्लॉट। कि एकदम देर इज ए एम्प्टीनेस, सडनली एक शिथिलता आ जाती है शरीर में, अपने शब्द मुंह से निकलने बंद हो जाते हैं, आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, बदन के ऊपर बाल सब खड़े हो जाते हैं, आप एक ग्लास तक पकड़ नहीं पाते, इतना आप अपने आप को इमोशनली वीक एक्सपीरियंस करते हो। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ऐसे मैं क्यों फील कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण उनके चैरिटियर थे, उस क्या बोलते हैं, सारथी थे, तो उसने पूछा, जब वो ये बोल रहा है कि मैं सब बिल्कुल मैं प्लॉट लूज कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान उसको देख के सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, वो रो नहीं रहे। अच्छा तू रो रहा है, चलो मैं भी तेरे साथ थोड़ा रो लेता हूँ, वो रोए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम यहाँ पे आके दुख बटोरने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं। पासिंग अवे इज अ सेलिब्रेशन, अनमैनिफेस्टेशन इज अ सेलिब्रेशन। वाई सेलिब्रेशन? क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आभूषण आते हैं जाते हैं, सोना वैसा का वैसा रहता है, मिट्टी के बर्तन आते जाते हैं, मिट्टी की वैसी रहती है। उसी तरह से कपड़े आते हैं जाते हैं, शरीर तो वैसा का वैसा ही है। उसी तरह से ये शरीर भी आता है और जाता है। नहीं हमने तो नहीं, हमको तो नहीं पता। कैसे नहीं पता? आपको बिल्कुल पता है, आपका अनुभव भी है। आपका जागृत में आपकी ये शरीर है, सपने में कोई दूसरा शरीर होता है, दूसरी बीवी होती है, दूसरा पति होता है, दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरा घर होता है। तो ये शरीर छोड़ के आप दूसरा शरीर ले लेते हो सपने में, फिर सपने का शरीर छोड़ के फिर ये, यू आर अंडरस्टैंडिंग।
ओके, सो सपने का शरीर छोड़ के फिर जागृत में आके फिर ये शरीर पकड़ लेते हो, तो यू नो हाउ टू ड्रॉप द बॉडी ऑल्सो एंड यू नो हाउ टू ड्रॉप बोथ द बॉडीज ऑल्सो बाय गोइंग टू स्लीप. Catch the principle. Death is a principle. Death is not an event of life. This is a big one. If you can digest it, you will welcome. अरे मृत्यु इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो तब से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि every time I blink my eyes, the world is dead to my eyes. Every time I breathe out, there is death. Every time I send the word out, there is nothing, there is no word in my mouth. Every time I leave the waking and go into the dream or sleep, I am dead to the waking. When I left the dream, I am dead to the dream. हर रोज नया ड्रीम आ रहा है, हर रोज नया ड्रीम आ रहा है. कौन जानता है ये? मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ रुलाने के लिए नहीं. ये कौन जानता है कि कल भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति आया, उसके पहले वाले दिन में भी जागृत सुषुप्ति आया, बचपन से लेके आज तक आप ये 3 अवस्थाओं में आ रहे हो और जा रहे हो. ठीक है ना? सबका अनुभव है कि नहीं है कि एवरी डे यू आर वेकिंग, एवरी डे एट नाइट यू आर ड्रीमिंग, एवरी नाइट यू गो टू स्लीप, नेक्स्ट डे अगेन यू वेक अप, again in the night you go to sleep, and in between there is a dream. So these 3 states are happening every day to you. Who knows it? Who knows it? Someone outside you, will they know that you are? No, you know कि you took the role of the waker, you took the role of the dreamer, you went to the sleep. Then who is this? Waker does not. जागृत पुरुष जो है वो सपने में जा नहीं सकता. तो ये कौन है जो जानता है? तो इसलिए अर्जुन बोलता है निश्रेय स्यात् निश्चित ब्रूहितन में. मुझे कंक्लूसिवली बताओ, ऐसे वैसे मत बताना कि मेरे को चॉकलेट दे दिया अच्छा तो चुप हो जा. नहीं, निश्रेय मीन्स कंक्लूसिवली. और क्यों बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मैं आपका भक्त हूँ. ये दोनों क्वालिटी चाहिए. शिष्य की और भक्ति की क्या क्वालिटी है? शिष्य की क्वालिटी है कि वो जो टीचर सिखाता है वो सीख के अपने आप को बदलता है. शिष्य अपने आप को बदलता है, गुरु को बदलने की कोशिश नहीं करता. और भक्त कौन है? भक्त के लिए भगवान बदल जाते हैं इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं भक्त के लिए. तो ये दोनों क्वालिटीज, द हेड एंड द हार्ट, they have to be available at the feet of the Lord. ये जैसे जैसे हम कल्टीवेट करते हैं तो ये जो जागरूकता है कि मैं तो अनंत हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और मृत्यु सिर्फ एक प्रिंसिपल है. जैसे ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है, लाइट एक प्रिंसिपल है, मृत्यु भी एक प्रिंसिपल है जो हर क्षण होता जा रहा है. हर क्षण. डिपेंड्स वेयर योर अटेंशन इज. अभी आप इस हॉल में आए, ये हॉल आपको मिल गया, आप इसमें बैठे हैं, अपना माना है ये हमारा है. कोई और आ जाएगा, नहीं नहीं इसमें नहीं आना, ये हमारी मीटिंग चल रही है यहाँ पे. खाना पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे, हाँ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो. देयर इज नो अटैचमेंट आफ्टरवर्ड्स, इजंट इट? देयर इज नो ओनरशिप. उसी तरह से जब ये आत्मा इस शरीर को ओन करती है कि ये शरीर मेरा है, ईगो क्रिएट होती है. दुख सिर्फ ईगो को है, मिजरी सिर्फ ईगो को है. आपको हमेशा हर क्षण इस बात की चिंता करनी है कि मैं वो हूँ जिसके सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ रहे और जा रहे हैं, जिसके सामने बालपन, टीनेज, यूथ, ओल्ड एज, एवरी बर्थडे इज कमिंग एंड गोइंग. मैं वो हूँ जो बदला नहीं. ये बाकी सब कुछ, मेरा शरीर पहले बचपन का था, अभी बड़ा हो गया, अभी बुढ़ा हो रहा है, अभी बीमार है, ये चला जाएगा एक दिन. व्हाट इज द जर्नी ऑफ द बॉडी? इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू. भगवद गीता बताती है क्या? बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके एंड डेथ. Everything that comes into this creation will go through these 5 or 6 steps
and then conclude. It will go out of manifestation. और वो क्या, हमारे लिए तो ये शरीर है. अब इस शरीर के साथ हमने आसक्ति बना के रखी हुई है तो हमारे को परेशानी तो होगी. तो इस जीवन में मनुष्य को ही ये एक मौका दिया है, जानवरों को ये मौका नहीं है. बेशक आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन सिर्फ हाँ, और किसको मौका नहीं है? राक्षसों और असुरों को भी ये मौका नहीं है, देवताओं को भी ये मौका नहीं है. सूर्य नहीं सोच सकता यार आज मैं थक गया, लाइट दे दे के, गर्मी दे दे के मेरे को थोड़ी ठंडक चाहिए, चलो मैं बंद करता हूँ. ही कैनॉट मेक द चॉइस, ही इज स्टक इन हिज पोजिशन. ब्रह्मा जी कैनॉट चेंज, ही इज स्टक इन द पोजिशन ऑफ यार बहुत दिन से मैं क्रिएट ही करता जा रहा हूँ, सृष्टि बनाता जा रहा हूँ, चलो थोड़ा पालन करते हैं. विष्णु की पोजिशन, विष्णु प्लीज़ कम एंड टेक माई पोजिशन, आई विल टेक योर पोजिशन. नॉट पॉसिबल. ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पोजिशन में अटके हुए हैं. देवता सारे, जितने भी देवता हैं, 33 करोड़ बोल लो या 33 बोल लो, आदित्य, सारे प्लैनेट्स, ग्रह, सब फंसे हो अपनी जगह पे. चॉइस सिर्फ मनुष्य के पास है कि मैं बोलना चाहता हूँ या नहीं बोलना चाहता. आप सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते. अभी खाने को मिलेगा, मैं डोसा खाऊँ या इडली खाऊँ, ये आपके पास चॉइस है. अगर मेरे को नींद आ रही है, एग्ज़ाम है, आई कैन चूज टू पुश अवे द स्लीप एंड कंटिन्यू टू स्टडी. दिस चॉइस आई कैन मेक. I can make the choice as a human being. This opportunity is available only to human beings. Don't waste it. Choose wisely. Liberation is only possible through the human birth. Gods cannot liberate, and everything else, the animal kingdom, plant kingdom, they also cannot. They can have relative immortality, but they cannot liberate. So make a correct choice. Maybe that's why he is called. See? And these are the opportunities. एक तो हम देखते हैं कि क्रीमेशन होता है, हम देखते हैं कि हमारा भी एक दिन होने वाला है. उसको बोलते हैं क्षणिक वैराग्य. जब हम किसी के क्रीमेशन में जाते हैं तो ये विचार सबके मन में आता है कि एक दिन हमारा भी यही हाल होने वाला है. क्या यार, उस समय बातें भी ऐसी होती हैं कि जीवन में क्या रखा है, कुछ भी अपना नहीं है. पर जैसे ही हम उधर से बाहर निकलते हैं, फिर यार कहाँ पे इन्वेस्ट करें. फिर सूखा कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर गीला कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया. इमीडिएटली वी फॉरगेट. सो आई विल जस्ट से दिस मच, live an alert life. Live an alert life. I'll chant a few verses of Bhagavad Gita for our Bal Swarup ji and for ourselves mainly. You understand or you don't understand, it does not make any difference, because when we chant, inadvertently it will go and make an impact on your subconscious mind. एक मिनट. हाँ, यहाँ से. तो ये बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः. उसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि मेरे को सबसे निश्रेयस बताओ, मेरे को सबसे आत्मा क्या है इसके बारे में बताओ. क्योंकि निश्रेयस 3 चीज़ें होती हैं: प्रेयस, श्रेयस, निश्रेयस. लोअर नॉलेज, हायर नॉलेज एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज आत्मा. सात्विक नॉलेज इज श्रेयस एंड वर्ल्डली नॉलेज इज प्रेयस. सो नाउ वी आर गोइंग हाई. अर्जुन इज आस्किंग, टेल मी द हाईएस्ट गुड फॉर मी दैट इज वर्दी टू बी नोन. तो कृष्ण भगवान उसको उत्तर में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित। दिस आत्मा, ये जो आत्मा है न आती है न जाती है, तो कौन मरता है और कौन पैदा होता है? इसको बोलते हैं जीवात्मा। जीवात्मा इज कंडीशनड कॉन्शियसनेस। हु आर यू? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। So accept, in spite of all the doubts, accept. Why? Because the scriptures say it. Why? Because there are many saints and sages on our land of Bharat who have realized that and have authenticated that what Bhagavad Gita and the Vedas are saying is correct. That you are of the nature which is free from birth and death. That is the pure consciousness. Na jayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavita na bhuya. And that Atma does not have any past or future. If there is no past and future, there is no present also. And that moment, infinite expansion happens. Ajo nitya, ajaha. It is birthless, nitya, it is eternal, shashvatoyam, it is of the nature of, it's most ancient and auspicious, na hanyate hanyamane shurire, nor can it be killed, nor it can ever kill anything or anyone. Atma cannot be killed, nor does it kill anyone. Then who kills? Ego kills. How? Forget about carrying knife and sword and gun, which happens in America. What is the best, easiest way of killing someone? By words. Even better, by thoughts. See? So keep yourself pure. And that will only happen when you recognize that you are the infinite. In you, just like in the ocean, all the waves are included in the ocean. Ocean feels that it is pervading all the waves. Similarly, this consciousness, jo aja, nitya, shashvata, purana, na hanyate hanyamane, with this consciousness that I am, it is all inclusive. मैं आपको एक उदाहरण देके थोड़ी सी वर्सेस बोल के कंक्लूड करता हूँ. कैसे ये भी आपका अनुभव है. शास्त्र हमको सिर्फ सिखाते हैं जो आपके जीवन में ऑलरेडी चल रहा है, पर आप भूल गए हो. देखो, आप सपना लेते हो सबके सब. मेजॉरिटी ऑफ अस ड्रीम, राइट? इन द ड्रीम, वेयर डिड द ड्रीम कम फ्रॉम? डिड इट कम फ्रॉम आउटसाइड? It came in your mind. It's a projection of your mind. In that dream, space, air, fire, water, earth also is there. Mountains, rivers, plant kingdom, houses, all the inert world is there. Plus, all the species of living beings are also there. And all those species with their minds are also there. And their individuality is also there.
What is the material out of which the whole dream is made? Mind. Who is pervading everything in the dream? Mind. इतना एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो. Exactly the same thing is happening in the waking also. You are the source, you are the consciousness, you are the Ajo Shashvatoham Puranaha. Once a person realizes that this consciousness that I am is all inclusive, there can be no desire, there can be no hatred. There can be no desire for anything in this world after that. Does an ocean desire that I don't like this wave, I like that wave? No. Does an ocean hate some wave because it's a big wave called tsunami? Arey, ye kahan se aaya, isko maro. Ocean doesn't say it. It includes everything. And how do you include? Equanimity. सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व न शोचति न कांक्षति. Maturity is when we maintain such a position where we are not disturbed or not non-reactionary towards joys and sorrows, likes and dislikes, victory and defeat, gain and loss, and also from expectations and regrets. Mind is going through all this. You stand apart. You stand apart. For a moment, you get a glimpse of it when you go to the cremation ground. You stand apart. But once you come out of it, again, the avalanche comes of all the what? Of all the dry garbage and wet garbage. We continue here quickly. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. What is the nature of this Atma? This Atma is that weapons do not cut it, fire does not burn it, water does not wet it, and wind does not dry it. And what do? It's so cold, heater बढ़ाओ यार. और अभी गर्मी आ जाएगी तो it's so hot, कूलर लगाओ. Wisdom is remaining non-reactionary. Wisdom is happily enduring whatever life is throwing at us. Happily, not as an escape, not as a complaint, happily, joyfully. अथ चैनं नित्यजातं अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्.
देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न धिक्कम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. And in this way the teacher in Krishna continues after the topic changes, but till the verse 31-32 of the second chapter, starting from 10th verse, he gives him the highest knowledge of, because Arjuna asked, so he gave. But what happened to Arjuna? Did he realize? No, it was bouncers over his head. That's why chapter 2 then Krishna Bhagavan comes down to his level, because he's a karma yogi. He comes down to his level and slowly holds his hand and raises him to the 18th chapter, where he has no doubt left in his mind as to who he is and who is running this world, that he is just a pawn which is being used by the Lord, and that pawn is of the nature of divinity, because Lord alone has become everything, just like your mind has alone become everything in your dream, just like water has become every wave, just like gold has become every ornament. Similarly, this realization and living with that realization that everything that is happening in our life is by His will, there is no place for our individual will. Living in this manner, living in this disposition is called wisdom. One who comes to realize this before his last breath, he is a saint. Many people you see who have realized they are still moving around in this world, they are living saints. But if that disposition is gained even with the last breath, it is a life well lived. And with that, we give our pranams to Bal Swarup Ji, who I can only go with what he has told, that he came to know that he invited death. He welcomed the death because he knew death is coming. He was prepared for it. बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हरि ओम.